Hello students, hope all of you are well. So today we will start with our next lecture, that is the remaining rules for the particular integral. So before I start, I want to say that if you still haven't subscribed my channel, please subscribe this channel because I am making this video only for you. Now in our previous video lecture I have told you about the rules for particular integral for three different type of functions. That is, one is the exponential function, other is the polynomial function, and another is the trigonometric function, but a special type of trigonometric function, that is sine function and cos function. So today we will learn with the rest of the rules of the particular integral. So what is the rule number 4? If on the right hand side we have the function is a combined function, say e to the power ax into some function v is present on the right hand side of the differential equation. तो एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे e टू दी पावर ए एक्स के साथ कुछ भी फंक्शन मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है. समझ लो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स है, या फिर साइन ए एक्स ई टू दी पावर 3x है, ऐसा करके फंक्शन है. तो वो कंबाइन फॉर्म में है. ई टू दी पावर एक्स के साथ कुछ भी फंक्शन v जो एक x का फंक्शन है वो कंबाइन करके दिया हुआ है. देन व्हाट विल बी द रूल? द रूल इज वेरी सिंपल. If 1 by fd e to the power ax v, that is our pi, it will be e to the power ax will be out of this whole operator by replacing d by d plus a. तो जहां जहां पे d है, d को किससे रिप्लेस कर देंगे? d will be replaced by d plus a, that is the coefficient of x in the power of e, that is e to the power ax. इस a से d को रिप्लेस करेंगे and that will be d will be replaced by d plus a. Clear? Now, and this operator will act on only on the function v, remaining function. तो v sin x होगा तो रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे, cos x होगा तो रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे, या फिर अगर ये फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, देन वी विल अप्लाई रूल नंबर 3. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विथ सम प्रॉब्लम्स. समझ लो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, डी स्क्वायर प्लस 1y इक्वल्स टू एक्स ई टू दी पावर माइनस 2x. तो CF का रूल अभी सब लोगों को मालूम है, तो मैं CF यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ. तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे CF मैंने कैसे निकाला है. बाय फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आई हैव फाइंड आउट द CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ये अभी सब तुम लोगों को आ जाता है, मुझे पता है. नाउ व्हाट इज द PI? दैट इज 1 by d square plus 1 x into e to the power minus 2x. So we can see that a is equals to minus 2x. Clear? So if a equals to minus 2x, then e to the power minus 2x will be out of the whole operator by making d will be replaced by d plus a. तो a के जगह पे यहाँ पे क्या है? minus 2 है. तो जहां जहां पे d है हम लोग क्या करेंगे? d को रिप्लेस करेंगे d minus 2 से. ठीक है? e to the power 2 minus 2x will be out of the operator and d will be replaced by d minus 2. तो d माइनस 2 का होल स्क्वायर को हमने यहाँ पे तोड़ा है, तोड़ के यहाँ पे ये आ जाता है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 इंटू एक्स. नाउ यू कैन सी दैट ऑन द रिमेनिंग पोर्शन यू हैव x ऑन योर हैंड एंड ऑलरेडी यू नो बाय रूल 3 दैट हाउ वी हैव टू प्रोसीड दिस टाइप ऑफ रूल. तो ऐसा करके कुछ भी अगर फंक्शन होगा तो ये जो 5 है, जो कांस्टेंट टर्म है, उसको हम लोग को कॉमन लेना पड़ता है और उसको हम लोगों को बाइनोमियल फॉर्म में ले जाना पड़ता है. दैट इज 1 प्लस समथिंग होल टू द पावर माइनस 1 या फिर 1 प्लस समथिंग होल टू द पावर माइनस 2, ऐसे करके. ठीक है? तो 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d बाई 5 होल टू द पावर माइनस 1 इंटू एक्स. तो इसको हम लोगों ने जो फॉर्मूला था 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1, वो फॉर्मूला से इसको हम लोगों ने एक्सपेंड किया हुआ है. दैट इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. सिंस द फंक्शन इज एक्स ओनली, so derivative of x equals to 1, double derivative of x will be equal to 0. So the square cube of d will not be operated on x. So we will left with x into 1, that is x, d square of x, that will be 0, minus of minus, that is plus 4 by 5 d of x, that is equals to 1. So that is our PI. Clear? So this is our particular integral CF plus PI, that will be our general solution. Similarly, I have done some problems here. Try to understand the problem and solve by yourself. Okay? आसान है, दिक्कत नहीं है. जब भी e टू दी पावर x के साथ कुछ भी फंक्शन रहेगा
तो हम लोग को क्या करना है, उसको e टू द पावर x को बाहर लेके जाना है, ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा और d विल बी रिप्लेस्ड बाय d प्लस a। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि जब पर्टिकुलर इंटीग्रल इस फंक्शन का निकाल रहे हैं हम लोग, e टू द पावर माइनस 2x sin 3x, e to the power minus 2x is out of the operator, d is replaced by d minus 2 and the remaining portion is our sin 3x। so sin 3x अगर हमारा रिमेनिंग पोर्शन है तो हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, रूल नंबर 2 फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज d स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे sin 3x है, 3 इसका मतलब a है, तो d स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस 3 स्क्वायर दैट इज माइनस 9। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ जाता है 1 बाई 3 माइनस 6d। तो इफ इट इज 1 माइनस 3 माइनस 6d देन यू कैन नॉट रिप्लेस दिस वन बाई मेकिंग विदाउट मेकिंग दिस d स्क्वायर। तो फिर से हम लोग को क्या करना है, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। ये सभी मैंने रूल नंबर 2 पे बहुत ही एलाबोरेटली डिस्कस करके रखा हुआ है। अगर तुम लोग फिर से इसको समझ नहीं पा रहे हो, गो टू चेक द प्रीवियस वीडियो लेक्चर। क्लियर? So by multiplying its conjugate, again d square will appear. Now first thing we have to operate 3 plus 6 1 plus 6d, क्योंकि ये पहला है तो 3 plus 6d को ऑपरेट करेंगे sin 3x के ऊपर और then we will put d square replaced by minus a square. Clear? So that will be our answer. Now the last rule is that the rule number 5, and it is the one of the lengthy process. So if in exam you can see that a problem can be solved by rule number 4, then apply rule number 4. No need to apply rule number 5. But if the function is not getting solved without applying rule number 5, then we have to nothing to do. Then we have to solve by rule number 5. Clear? So rule number 5 क्या होता है, देखो अगर राइट हैंड साइड पे कैपिटल X जो है वो x इंटू फंक्शन ऑफ v है। अगर x इंटू फंक्शन ऑफ v है इसका मतलब क्या है, x पॉलिनोमियल है, उसके साथ कुछ ना कुछ फंक्शन है कि x के साथ e टू दी पावर 2x है, x के साथ sin x है, x के साथ कुछ भी फंक्शन है, तो हम लोग उसको रूल नंबर 5 से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तुम लोग ये देख सकते हो कि रूल नंबर 4 पे भी मैंने कहा है e टू दी पावर x के साथ कुछ फंक्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इफ e टू दी पावर x के साथ कुछ फंक्शन यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, e टू दी पावर s के साथ अगर कुछ फंक्शन है तो उसको भी रूल नंबर 4 से भी अप्लाई कर सकते हैं, रूल नंबर 5 से भी हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट इज द रूल, 1 बाई एफ डी एक्स इंटू वी दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 बाई एफ डी एफ डैश डी 1 बाई एफ डी ऑफ वी। लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। तो 1 बाई एफ डी है हमारा डी ऑपरेटर, दैट इज द पी आई पार्ट, 1 बाई एफ डी 1 बाई एफ डी इंटू एफ डैश डी 1 बाई एफ डी इंटू वी, दैट इज द formula for this particular integral. But if we have the general formula x to the power n into v, समझ लो x स्क्वायर इंटू साइन x है, x स्क्वायर इंटू कॉस x है, x के स्क्वायर इंटू e टू द पावर x है, x क्यूब इंटू e टू द पावर 5x है, then the formula will be changed, and what is the change, that x minus 1 by f d f dash d whole to the power n will appear. The power x to the power n will be putting here. क्लियर? जो पावर यहाँ पे रहेगा x का पावर हम लोग उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर? तो वही मैंने यहाँ पे बताया है कि अगर रूल नंबर 4 से आ जाता है तो रूल नंबर 4 से ही करो, रूल नंबर 5 को करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक प्रॉब्लम हम लोग समझ लेते हैं। समझ लो डी स्क्वायर प्लस 4y एक्स साइन एक्स है। तो अभी तुम सब लोगों को ऑक्सिलरी इक्वेशन से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाता है, मुझको पता है, तो मैं ऑक्सिलरी फंक्शन से CF नहीं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। We are simply find out the pi. So 1 by d square plus 4x sin x, that will be equals to what? X minus 1 by fd, that is d square plus 4. Derivative of fd, that is f dash d with respect to d. So d square का derivative हो जाएगा 2d. बाहर क्या होगा, 1 by fd into the remaining function, that is v. V is our sin x. So sin x. Clear? So d square will be replaced by minus a square. So यहाँ पे minus 1 plus 4 हो गया, तो यहाँ पे आ जाता है 1 by 3. तो 1 by 3 बाहर चला गया। अभी sin x ऑपरेट होगा किसके ऊपर, ये जो पोर्शन है इसके ऊपर sin x ऑपरेट होगा। तो x माइनस 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4 2d इंटू साइन एक्स बचा रहता है यहाँ पे। तो अभी क्या करना है, sin x को एंटर करना है, तो x इंटू साइन एक्स होगा यहाँ पे माइनस 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4 2d इंटू साइन एक्स। तो 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है, 2 इंटू कॉस एक्स। क्लियर?
So 1/3 x sin x minus, again d square will be replaced by -1, so it will be -1 plus 3 that is 4, that is 3, so -2/3 cos x आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो फिर से मैंने यहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम किया हुआ है। तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे फंक्शन है x इंटू ई टू दी पावर 2x। सो x को अगर हम लोग पकड़ते हैं और v को अगर हम लोग ई टू दी पावर 2x पकड़ते हैं, देन वी हैव टू अप्लाई रूल नंबर 5। बट इफ वी कंसिडर ई टू दी पावर 2x एज आवर फंक्शन, देन v विल बी इक्वल्स टू x, देन वी कैन अप्लाई रूल नंबर 4। तो x ई टू दी पावर x फॉर्म में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग रूल नंबर 4 से भी कर सकते हैं, रूल नंबर 5 से भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी रूल नंबर 5 से मैंने यहाँ पे किया हुआ है और तुम लोग देख सकते हो कि ये लेंथी हुआ है, इसीलिए मैंने कहा है कि अगर रूल नंबर 4 से आ जाता है तो रूल नंबर 4 से करो, क्योंकि वहां पे शॉर्टकट भी वहां पे एप्लीकेबल है और वो छोटा भी होता है। क्लियर, सेम रूल है यहाँ पे, सेम टेक्निक से मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। अभी मैं तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स दे देता हूँ जो ईयर में रिपीट हुआ है several times. Those problems are several times repeated in previous year. Also the problems that I have done in the rules, they are also come. So try to understand those problems by yourself, and if you have any doubt you can freely ask me. Clear? Now among all these problems I want to discuss one or two problems for your better understanding, because all these problems are actually from rule number 1, 2, 3, 4, etc. Clear? So let us discuss one or two problems that I want to say. Look at the example number 3. Here you can see that x e to the power x sin x is present. तो यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन एक्स है, तो इसका मतलब ये पूरा कंबाइन हो गया। हमारा रूल नंबर 4 भी कंबाइन हुआ है, रूल नंबर 5 भी कंबाइन हुआ है, तो कंबाइन करके किए हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसका पीआई कैसे निकालेंगे? मैं एक चीज तुम लोग को बार बार कह रहा हूं कि अगर रूल नंबर 4 पहले आ जाता है कहीं भी जगह पे तो उसको पहले अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ई टू दी पावर एक्स है इस पूरा फंक्शन के साथ, तो हम लोग ई टू दी पावर एक्स को छोड़ देते हैं और एक्स इंटू साइन एक्स को हम लोग सोच रहे हैं कि ये हमारा वी एक्स है। क्लियर, एक्स इंटू साइन एक्स इज आवर वी एक्स पार्ट। सो ई टू दी पावर एक्स विल बी आउट ऑफ द ऑपरेटर बाई रिप्लेसिंग डी बाई डी प्लस 1। वाई? because x has coefficient 1 in the power of e to the power x है, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुका है? 1 हो चुका है। तो d के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? d को रिप्लेस करेंगे d प्लस 1 से। सो e to the power x is out of the operator, d is replaced by d plus 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग कुछ ऐसा फंक्शन मिल रहा है 1/d स्क्वायर x इंटू साइन एक्स। तो d ऑफ समथिंग दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, 1/d of something that means integration of the function। अभी मेरा जो क्लास जो मेरा क्लास करता है तो तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे जो x sin x है तो वो तो बाई पार्ट से होगा। ठीक है, तो बाई पार्ट्स का रूल मैंने शॉर्टकट टेक्निक तुम सभी लोगों को बताया है, और अगर तुम लोगों को वो दिमाग पे नहीं है मैं फिर से एक बार शॉर्टकट टेक्निक बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डबल टाइम हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है, दैट मीन्स वी हैव टू इंटीग्रेट इट 2 बाई पार्ट्स। So let us bypass this। तो x इंटू साइन एक्स है ना, तो x है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, तो x का हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे, और साइन x है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेट करना है। ये रूल एप्लीकेबल है, जो मैं रूल यहाँ पे शॉर्टकट बाईपार्ट्स का रूल तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये रूल एप्लीकेबल है अगर कोई एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई करके रहता है। ठीक है ना, तो x है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। साइन एक्स है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो x को डेरिवेटिव करना है until it will become 0। तो एल्जेब्रिक फंक्शन जो रहेगा उसको डेरिवेटिव करेंगे until it will become 0, एंड वैसे ही जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन होगा इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो x का डेरिवेटिव होता है 1, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। 1 का डेरिवेटिव करेंगे होता है 0, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स होगा। तो आंसर कैसे आएगा? प्लस माइनस ऐसे करके ऑल्टरनेटली साइन पे आ जाता है प्रीवियस साइन, एंड व्हाट विल बी द प्रोसेस? x विल बी मल्टीप्लाइड विथ माइनस कॉस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x विल बी मल्टीप्लाइड विथ माइनस कॉस एक्स एंड प्लस साइन, माइनस ऑफ -1 विल बी मल्टीप्लाइड विथ माइनस साइन एक्स। तो आंसर क्या हो जाता है?
माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दिस इंटू दिस, ऐसे करके हो जाता है, ठीक है ना। शॉर्टकट टेक्निक मैंने तुम लोगों को बताया है अभी, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लियर? अच्छा, तो दूसरा भी वैसे ही 1/d है, तो फिर से हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, फिर से वही टेक्निक अप्लाई करेंगे यहाँ पे। माइनस एक्स कॉस एक्स के लिए तो माइनस एक्स है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन और cos x है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। माइनस एक्स को डेरिवेटिव करो अंटिल इट विल बिकम 0, cos x को इंटीग्रेट करके जाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है हमारा आंसर, ठीक है। तो डबल बाई पार्ट से हम लोग इसको सॉल्व किया हुआ है। ये प्रॉब्लम मुझको बताना था तुम लोगों को। अभी जो प्रॉब्लम है ये तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, रूल नंबर 4 से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इसको देख लो और खुद से सॉल्व कर लो। क्लियर? जो प्रॉब्लम नंबर 5 है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और बहुत बार एग्जाम पे आ चुका है। इसको समझो, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो x इंटू साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग तोड़ेंगे ऐसे, हाफ इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे तो वो 1 माइनस कॉस 2x हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट हो जाएगा, 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4 हाफ एक्स माइनस 1 बाई 2 डी स्क्वायर प्लस 4 एक्स कॉस 2x। अभी ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाला है ये आसानी से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तुम लोग को अभी पता चल जाएगा। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे रूल नंबर 5 अप्लाई करते हैं इस फॉर्म के लिए तो cos 2x रहेगा और डी स्क्वायर को अगर माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो वो हो जाता है 0। तो वो तो ट्रिकी हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरा टर्म है इस पूरा टर्म को हम लोग उसको आई पकड़ेंगे। क्लियर? 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स कॉस 2x को हम लोग आई पकड़ेंगे। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। सो कंसिडर आई इक्वल्स टू 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4 एक्स कॉस 2x, क्योंकि ये आई रिपीट हो सकता है। क्लियर? सो मेकिंग द रूल नंबर 5 एक्स माइनस 1 बाई एफ डी एफ डैश्ड डी 1 बाई एफ डी कॉस 2x। अभी देखो डी स्क्वायर को अगर माइनस 4 से रिप्लेस करेंगे ये हो जाता है 0। तो अगर ये 0 हो जाता है तो रूल नंबर 2 पे मैंने बताया था अगर 0 हो जाता है तो क्या करना है, एक x बाहर आएगा, इसका डेरिवेटिव करना है, दैट इज 1 बाई 2d और ये सेम रहेगा cos 2x रहेगा। ठीक है, तो x बाई 2 है यहाँ पे, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x बाई 2, तो x बाई 4 हो जाता है और sin 2x रहता है। अभी x बाई 4 sin 2x को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाई 4 मैंने कॉन्स्टेंट को बाहर भेजा है, x इंटू एक्स साइन 2x दैट इज एक्स स्क्वायर साइन 2x माइनस 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4 2d इंटू एक्स साइन 2x। तो डेरिवेटिव ऑफ x साइन 2x अगर करेंगे तो यहाँ पे देखो x साइन 2x प्लस 2x cos 2x टर्म आ रहा है, तो इसको एक्सपेंड करने पे ही हम लोग को यहाँ पे ये टर्म फिर से आ गया 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4 एक्स cos 2x, जो टर्म मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है x cos 2x 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4। तो ये आसानी से क्या हो जाता है आई हो जाता है, और बाकी तो हम लोग को मालूम है, ये तो रूल नंबर 2 से हो जाएगा। 2 से सॉल्व किया हमने, यहाँ पे माइनस आई है, माइनस 4 है, 1 बाई 4 है आउटसाइड, कैंसिल आउट होके हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जाता है। ठीक है ना, ये है हमारा आई का वैल्यू। लेकिन दूसरा एक पार्ट भी था जो है एक्स का, दैट इज हाफ ऑफ एक्स 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ दिस वन। तो इसको एक्सपेंड करके बाइनोमियल फॉर्म में ले जाके रूल नंबर 3 से इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है x बाई 8। तो पी आई विल बी join of these two function and the general solution will be this. Okay, so this is the end of our d operator chapter. Next we will discuss with the next topic, that is the Cauchy Euler.